Hello friends, welcome to my channel, and today's topic is soil science. It is one of the important topic if you consider the syllabus of ARD static. It asks in phase 1 objective part, and moreover it is important to understand the topic called your field crops, because if you know about soil, it's how does it form, so you can get to know about its component, like what kind of a nutrient does the soil is having. So according to that, you can decide which type of field crops can be grown there, or which what kind of horticulture crops can be grown there. Okay, and also if you know the texture, which is the which is the physical property, which we will study in the physical property of soil. So if you know these things about soil, it will be easy for you to understand which kind of field crop can be grown over that particular soil. So in this soil science, what is the important for your exam is type of soil, and type of soil is important, profile of a soil is important, and another part is plant nutrients, which generally, a plant gets from where? It gets its nutrient from soil through roots. Okay, so if the soil uh, is having a nutrient that is required by a plant, so it will be easy, or it will be low cost for a farmer to grow but that particular plant in that soil. Okay, and if you know the content of the that particular soil, so you can apply that means particular type of fertilizer to that particular soil, so that you can have a proper productivity or a good productivity from that soil. Okay, so plant nutrient is also an important part of this topic. Profile of soil is important, types of soil is important. We will study fertilizers in this particular topic, soil science. But today we are going to discuss about means meaning and formation of soil. How does a soil form? So in this particular video, I'm going to discuss the meaning and formation of the soil. Okay. So we'll start with the definition of the soil. So what does soil actually mean? So look, soil is nothing but a fine earth covering, the- okay, of a land surface, which has a which plays a critical function, that is substratum of a plant, animal, and a human life. What does mean of substratum? Substratum means it is a layer. It will be a layer of soil we have, or you can say it act as a base for plant, animal, and human life. How soil is actually playing a base for a plant, and animal, and human life? See, plant requires nutrient. As I've discussed this part, the plant requires nutrient in the to grow, or to produce a fruit or grain crop or whatever it is. It requires a particular set of nutrients to grow. So this nutrient can be obtained from where? This nutrient can be obtained from your soil. Okay, so nutrient which are required by plant, nutrient which are required by plant can be obtained from soil through roots. Okay, and how does an animal depend upon the soil? See, just like as a animal, also some are herbivores. So they eat what? They eat plant or small grasses, which is actually grown on what? On soil. And some of the animals, or some of the living being, like earthworm,
Okay, they all they all lie they all lives in the soil. Okay, तो जो सॉइल है, एक्चुअली सॉइल में हमें क्या फायदा होता है कि जो भी हमारे अर्थवॉर्म है, जो भी चीजें हैं, अर्थवॉर्म क्या करता है, सॉइल्स को मींस दे फीड ऑन अ सॉइल एंड दे डाइजेस्ट ह्यूमस व्हिच एक्चुअली प्रोवाइड अ टॉप लेयर ऑफ द सॉइल. ओके, आपका सॉइल जो है, एक ये सरफेस है मान लो, तो यहाँ पे जो भी आपके ह्यूमस प्रोवाइड होते हैं वो कहाँ से आते हैं? दे आर जस्ट एक्चुअली दे कम फ्रॉम योर अर्थवॉर्म. Okay, and several animals live in the soil. तो ये सारी चीजें क्या है, इस तरीके से क्या होता है, सॉइल जो होता है वो हमारा एक बेस की तरह काम करता है फॉर अ प्लांट, एनिमल और ह्यूमन लाइफ के लिए डेफिनेटली, बिकॉज वी फीड ऑन एनिमल एंड प्लांट. ओके, एंड ऑल्सो इट एक्ट्स एज अ न्यूट्रिएंट एंड वाटर रिजर्वायर. ओके, अब ये कैसे न्यूट्रिएंट कैसे होता है? देखो, आप न्यूट्रिएंट की बात करते हो तो ये चीजें आपको तब पता लगेगी जब आप रॉक का फॉर्मेशन, सॉइल का फॉर्मेशन पढ़ोगे. जब सॉइल का फॉर्मेशन हम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमें न्यूट्रिएंट्स का रिजर्वायर कैसे होता है सॉइल, और वाटर का भी रिजर्वायर कैसे होगा. जो भी आपका रेन के थ्रू, जो भी बारिश के थ्रू थ्रू रेन जो भी वाटर आ रहा है वो क्या करेगा, वो पर्कुलेट कर जाएगा नीचे वाले लेयर्स में, और वो क्या करेगा, एज अ ग्राउंड वाटर रिजर्व रहता है. That is why you can see there are lots of project going on by the government of India means to increase the level of groundwater. Okay, वो क्यों है? क्योंकि अगर हमारे ग्राउंड वाटर में का लेवल डाउन हो जाएगा, देन आवर रूट्स, बेसिकली अगर आपके जो फाइबर्स रूट होते हैं, दे आर नॉट मच ऑफ लॉन्ग इन लेंथ. सो इनके लिए क्या हो जाएगा कि आपका जो पानी की जरूरत पड़ती है या रिक्वायरमेंट होती है वो उनको नहीं मिलेगी. तो इसीलिए हमारे यहाँ ये ट्राई किया जाता है कि हम ग्राउंड वाटर टेबल के लेवल को ऊपर कर सकें. ओके, तो सॉइल का बेसिकली डेफिनेशन ये है. इसमें कुछ चीजें हैं जो हमें फैक्ट्स हैं उनको याद रखना पड़ेगा. जैसे एक तो पहला फैक्ट्स है कि हाउ डज सॉइल वर्ड डिराइव्स. ओके, तो जो सॉइल वर्ड है वो डिराइव हुआ है आपके लैटिन वर्ड. सॉइल वर्ड इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड सोलम. किससे डिराइव हुआ है? सोलम. सपोज कभी आपको डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट आर द डिफरेंट प्रोसेस और डिफरेंट मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं सॉइल और सॉइल कंजर्वेशन की डेफिनेशन देनी पड़ेगी. एंड इफ यू कैन इंक्लूड दिस वर्ड एज अ सोलम, दैट सॉइल वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड सोलम. इसका मतलब क्या होता है? इट मींस फ्लोर. इसका मतलब होता है इट मींस फ्लोर. तो ये क्या है, हमारा एक फ्लोर है. ठीक है, जो कि सोलम का मतलब होता है फ्लोर. अब देखो आपका सॉइल क्या है, हम जो एक अपने लेयर पे देखते हैं, सपोज ये एक है, ये सरफेस है, हम क्यों केवल सरफेस पे सॉइल दिखते हैं, लेकिन दे आर फॉर्म बाय अ डिफरेंट लेयर, जो कि हम सॉइल प्रोफाइल में देखेंगे कि वो कौन कौन से डिफरेंट लेयर है. और हर एक लेयर का ना अपना अपना क्या होता है, प्रॉपर्टीज होती है. क्यों, कैसे प्रॉपर्टी डिफाइन होती है? वो जो न्यूट्रिएंट कंटेन करते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा गया कि सॉइल जो है हमारा रिजर्वायर है न्यूट्रिएंट का. ओके, ये बात क्लियर हुई? ठीक है, तो ये एक फैक्ट है जो हमें हमेशा ध्यान रखना है. देखो, ये पूछा जा सकता है, नहीं तो इसलिए अगर आप ये जानते रहोगे तो इट विल डेफिनेटली गोइंग टू बेनिफिट यू इन अ डिस्क्रिप्टिव पार्ट. ओके, नाउ द सेकंड पार्ट, second facts that you have to actually remember, that is, who is the father of soil science? Who is the father of soil science? So the father of soil science is Dr. Schleif. Okay, now the third point, which is the fact that you have to remember, that it is pedology and edaphology. Okay, what do you mean by pedology and edaphology? Look, pedology is nothing but it is a study of a soil, that how the soil origin and what are their description and how they are classified.
Okay, so the if you define pedology is nothing, is the study of origin, formation and the geographical distribution of soils in your surrounding. क्या होता है पेडोलॉजी का मतलब? पेडोलॉजी में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। क्या है वो? सॉइल का ओरिजिन कैसे हुआ है, सॉरी, सॉइल का ओरिजिन कैसे हुआ है, उसकी क्लासिफिकेशन हम कैसे कर रहे हैं, इसकी स्टडी, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कि हमारा सॉइल जो है वो किस टाइप का कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है, इन सारों की अगर हम बात करते हैं और इन सारी चीजों की अगर हम स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो अभी अगर आपको एग्जाम में आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग term defines the origin, classification, distribution of a soil in a nature, then what you are going to answer? Your answer will be pedology. Okay, so your answer will be pedology. Now the second term comes out to be edaphology. What does edaphology means actually? Look, when you study the relation, of a soil with the crop growth, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो हम क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं उसका रिलेशन हमारे सॉइल के साथ क्या है। ठीक है ना, किस सॉइल में कौन सा क्रॉप ग्रो कर रहा है, किस सॉइल में ये क्रॉप नहीं ग्रो करेगा, क्यों नहीं ग्रो कर रहा है, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट कि ये सॉइल जो है आपका इस क्रॉप ये क्रॉप इस सॉइल में नहीं ग्रो कर रहा है। जब हम इन सारी चीजों की स्टडी करते हैं ना तो उस पर्टिकुलर टर्म को हम क्या कहते हैं? एडेफोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है? ये चीज क्लियर है तो फिर इसमें हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा मीनिंग है सॉइल का। थोड़ा बहुत ओरिजिन के बारे में हम बात किए, इनके फादर ऑफ सॉइल साइंस कौन है, लैटिन वर्ड से डिराइव है, और हमारे यहाँ दो तरीके के टाइप ऑफ स्टडी ऑफ सॉइल है। एक पेडोलॉजी है जिसमें हम ओरिजिन, क्लासिफिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल की बात करते हैं, और एडोफोलॉजी वो होता है जिसमें हम सॉइल और क्रॉप के रिलेशन के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, यहां तक अगर बात क्लियर है तो फिर हम आगे इसमें बढ़ते हैं। अब देखो, हमने तो स्टडी के बारे में पढ़ लिया, सॉइल साइंस के फादर कौन है ये जान लिया, सॉइल का डेफिनेशन जान लिया। अब हम इसके बाद बात करते हैं कि सॉइल एक्चुअली बनता कैसे है। ऐसा तो नहीं है कि आसमान से बारिश लेके आता है उसको, ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो हाउ डज अ सॉइल फॉर्म, अब उसके बारे में हम आगे वाले वीडियो में देखते हैं। देखो, सॉइल का जो फॉर्मेशन है ना वो बेसिकली किससे होता है? जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका ये है वेदरिंग। वेदरिंग एक ऐसा पार्ट है ना जिसके वजह से तुम्हारा सॉइल का फॉर्मेशन होता है। अब सॉइल का फॉर्मेशन के लिए वेदरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट गेम खेलता है। अब एक्चुअली वेदरिंग होता क्या है? तो वेदरिंग का मतलब अगर आप हिंदी में समझो किसी भी चीज को, तो वेदरिंग का मतलब होता है किसी चीज को तोड़ना, उसको घिसना, रगड़ना। मतलब वो इट इज एक्चुअली एक 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 कौन एक एक आप पूरा होल एज अ पार्ट अगर किसी कोई चीज है, सपोज ये एज अ होल बॉल है, इसको तुम्हारे ड्यू टू सर्टेन एक्शंस ये डिसइंटीग्रेट करते जाए, टूटते जाए, टूटते जाए, टूटते जाए, और टूट के एकदम क्या हो जाए, फाइन पार्टिकल्स में हो जाए, तो इसी को हम क्या कह देते हैं? वेदरिंग कहते हैं। अब वेदरिंग होता क्या, वेदरिंग की वजह से होता क्या? वेदरिंग कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं? वेदरिंग हमारी फिजिकल वेदरिंग हो जाएगी, एक केमिकल वेदरिंग हो जाती है, और एक बायोलॉजिकल वेदरिंग। अब देखो, एज अ टर्म हम जब देख रहे हैं ना, फिजिकल क्या है, केमिकल क्या है, बायोलॉजिकल क्या है। फिजिकल इज बेसिकली और मैकेनिकल वेदरिंग। इसमें क्या होगा, आपका पानी आ जाएगा, इसके बारे में भी देखेंगे। पानी हो गया आपका, विंड हो गया, टेम्परेचर हो गया, जो भी हमारे फिजिकल फैक्टर्स है ना, लाइक विंड, वाटर एंड टेम्परेचर, ये जो है ना सारी चीजें, ये हमें सबसे ज्यादा इफेक्ट करती हैं। ठीक है, ये जब एज अ फिजिकल फैक्टर हो या कोई ऐसी चीजें हो जो हमारे फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड है या फिजिकली हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो चीजों को अगर उसके वजह से अगर कोई फॉर्मेशन ऑफ सॉइल हो रहा है या वेदरिंग हो रही है तो उसे हम क्या कह देंगे? फिजिकल वेदरिंग। और केमिकल वेदरिंग क्या हो जाएगी? केमिकल वेदरिंग होती है जैसे हमारे जो एनवायरनमेंट में गैसेस है ना, उनके वजह से केमिकल रिएक्शन हो रहा है, किसके साथ? रॉक्स के साथ। वो रॉक्स इन गैसेस के साथ रिएक्ट होके एक डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं, जो कि फर्दर डिकम्पोज होके किस फॉर्म में हो जाता है? सॉइल के फॉर्म में हो जाता है। तो जब भी हमारा गैस, जैसे हो गया हमारा ऑक्सीजन हो गया, ठीक है ना, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, ये सारे गैसेस जब हमारे
एनवायरनमेंट में हमारे एनवायरनमेंट में जो रॉक्स होते हैं उनके साथ रिएक्ट करें, या फिर ये एज अ बारिश में जो पानी होता है उसके साथ रिएक्ट करें, और वो फिर जाके अपना रॉक्स के ऊपर पड़े, तो एक रिएक्शन होता है जो रॉक्स है। अब रॉक्स क्यों रिएक्ट करेगा, रॉक्स जो है वो क्यों रिएक्ट करेगा? देखो रॉक्स कुछ होते नहीं है, इट इज कंटेन सेवरल मिनरल्स, इट कंटेन सेवरल मिनरल्स। अब ये जो मिनरल्स होते हैं ना, इन गैसेस के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, डिफरेंट कंपाउंड बना लेंगे। जैसे मान लीजिए आपका मान लीजिए सोडियम ही है या कैल्शियम है आपके रॉक में, ठीक है ना, कैल्शियम तो पाया जाता है, मार्बल्स वगैरह में कैल्शियम तो होते ही होते हैं। अब देखो जो कैल्शियम होगा ना हमारा, वो कैल्शियम क्या करेगा, ऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कैल्शियम ऑक्साइड बना लेगा, फिर वो तुम्हारा सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम सल्फाइड बना लेगा। अगर ये सारी चीजें, सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके एज एसिड फॉर्म में आते हैं, तो वो कैल्शियम उनके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, तो कैल्शियम सॉल्ट बना लेगा। अब वो जो कैल्शियम सॉल्ट होगा वो क्या होगा, वो तो पत्थर के फॉर्म में नहीं ना रहेगा, वो क्या होता है वही फर्दर डिकम्पोज होगा, उसकी वेदरिंग होगी। स्टार्ट कहां से हुई, ड्यू टू रिएक्शन विद सल्फर, कार्बन और ऑक्सीजन। So that is why it is considered as a chemical weathering to the rocks, और उसके वजह से जो सॉइल का फॉर्मेशन होगा वो उसी को हम कह देंगे सॉइल फॉर्मेशन ड्यू टू केमिकल। ठीक है, यहां तक क्लियर बात। अब नेक्स्ट बात आती है हमारी बायोलॉजिकल वेदरिंग। अब देखो बायोलॉजिकल वेदरिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है ना, अब आपका मान लीजिए ये प्लांट है, ठीक है, ठीक है, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं होगी, शुरू से नहीं थी। अब जो इसके रूट्स है ना, ये तो मान लो अगर सॉइल लेयर है तो ठीक है। कई बार आप देखते होगे पहाड़ों में भी जा घूम के आए होगे, माउंटेन वगैरह में जाते होगे, या कहीं भी देखना रॉक्स पे, या कहीं भी एक ऐसा रॉक्स है वहां पे एल्गी भी ग्रो कर जाती है। अब ये एल्गी में भी तो अपना रूट्स होते हैं ना, छोटे छोटे, भले फाइब्रस होते हैं। अब ये जब रूट्स जो है ना हल्के हल्के जब पिनिट्रेट होना शुरू करते हैं ना इस रॉक्स में, तो रॉक्स में क्या होता है, एक ऐसा सा एक ओपनिंग स्पेस क्रिएट हो जाएगा। अब यही ओपनिंग स्पेस फर्दर स्प्रेड आउट होते होते बड़ा हो जाता है। अब इतने पार्ट का रॉक गया कहां, इट्स एक्चुअली कन्वर्टेड इनटू सॉइल, इट इज एक्चुअली कन्वर्टेड इनटू सॉइल। तो इसके वजह से मतलब प्लांट हो गए, ड्यू टू एनिमल हो गए। अब एनिमल भी क्या करते हैं, देखो कई सारे एनिमल्स जो होते हैं ना होल बना के रहते हैं धरती के अंदर ना, जैसे खरगोश हो गया आपके, तो ये सारे लोग जो उसमें रहते हैं, तो उसके वजह से वो क्या करते हैं, कई सारी चीजों को मीन्स आपको वो, सपोज ये आपका सॉइल लेयर है, ठीक है ना, अब इसमें ये एक अपना स्पेस बनाएंगे जिसमें ये जाके रहना शुरू करेंगे। अब देखो इनके मूवमेंट से क्या होता है ना, जो अगल बगल की सराउंडिंग्स की लेयर्स होती हैं वो क्या होने लगती हैं, डिसइंटीग्रेट होने लगती हैं। उसमें कुछ सारे प्लांट्स, मतलब उसमें कई सारे रॉक पार्ट भी ऐसे होंगे जो डिसइंटीग्रेट होने लगेंगे, सॉफ्ट रॉक जैसे हो गए, तो वो फर्दर जो क्या होगा, डिसइंटीग्रेट होके आपका सॉइल होगा। ये तीन चीजें जो होती हैं, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग, इनके वजह से हमारा जो होता है बेसिकली सॉइल का फॉर्मेशन होता है। यहां तक क्लियर है बात? अब आगे हम इसके बारे में पढ़ते हैं, फिजिकल वेदरिंग कितने टाइप्स की होती है, केमिकल वेदरिंग कितने टाइप्स की होती है, और बायोलॉजिकल वेदरिंग कितने टाइप्स की होती है। अब देखो फिजिकल वेदरिंग में तुम्हारा क्या, अभी मैंने पहले ही बताया कि दैट विल इंक्लूड टेम्परेचर, वाटर एंड विंड। So basically there are three types of physical weathering. एक्सफोलिएशन, ठीक है ना, ये एक्सफोलिएशन है, ये ग्रैनुअल डिसइंटीग्रेशन है, एंड दिस इज योर व्हाट, क्रॉस सेक्टरिंग। अब देखो इसमें ये एक्सफोलिएशन का मतलब क्या हुआ, ये भी एक तरीके से का डिसइंटीग्रेशन ही है ना, ये भी एक तरीके का डिसइंटीग्रेशन है। इसमें क्या होता है कि बड़े बड़े चट्टान से होंगे, आपके रॉक्स से होंगे, इस पे क्या होगा, पानी बरसा, बारिश हुई, फिर धूप हुआ, बारिश हुई, धूप हुआ, इसके वजह से क्या होता है ना, आपके रॉक्स में क्रैक्स आने लगते हैं, और वो क्या करते हैं, धीरे धीरे टूटने लगते हैं। तो ये बड़ा सा जो चट्टान में ये देख रहे हो आप, ये पार्ट, ये जो बना है ना, ये ड्यू टू एक्सफोलिएशन ही बना है। अब यही फर्दर क्या होगा, इनके ऊपर आपका केमिकल वेदरिंग हो जाएगी,
तो ये फर्दर डिसइंटीग्रेट करके क्या बन जाएंगे, सॉइल बन जाएंगे। ठीक है, ठीक, तो ये हमारा एक्सफोलिएशन होता है। अब ये होता क्यों है? एक्सफोलिएशन बेसिकली ड्यू टू प्रेशर होता है या ड्यू टू टेम्परेचर। दो रीजन होते हैं जिनके वजह से हमारा एक्सफोलिएशन होता है। अब देखो होता क्या है कि जब बारिश आती है तो बारिश कोई 2 फुट 3 फुट के हाइट से तो आती नहीं है। अब वो तो आसमान से आ रही है। जब आसमान से आके किसी एक पत्थर पे गिरेगी, इट क्रिएट्स स्ट्रेस या एक प्रेशर क्रिएट करती है, और कंटिन्यूअस बारिश होने की वजह से क्या होता है, दिस पर्टिकुलर रॉक्स में क्या आने लगता है, एक वीकेंड होने लगते हैं। और फिर अब बारिश की वजह से तो ये क्या हो गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गए। कॉन्ट्रैक्शन होता है ना जब भी कभी टेम्परेचर डाउन हुआ। लेकिन फिर जैसे ही बारिश खत्म हुई, बाहर धूप निकल के आई, तो इससे क्या होगा, ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ना, दे विल स्टार्ट एक्सपेंडिंग, एंड ड्यू टू दिस कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंडिंग, दिस पर्टिकुलर रॉक्स गेट्स broken into several part and that is why it is called exfoliation. एक्सफोलिएशन का मतलब ही क्या है, एक बड़ा सा चट्टान दो छोटे छोटे पार्टों में, 2-3 से छोटे छोटे पार्ट में क्या हो गया, डिवाइड हो, तो उसे हम एक्सफोलिएशन। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रैनुअल डिसइंटीग्रेशन। अब देखो इसमें आप देख सकते हो कि एक फॉर्मेशन, ये सरफेस एक है, ठीक है ना। अब इस पे क्या देखो, ये तो एक कॉन्ट्रैक्शन ही हो गया, लेकिन सपोज मान लो एक नदी है, ठीक है ना, एक नदी फ्लो कर रही है और इसके बीच में ना एक रॉक है। अब ये नदी जब भी यहाँ से फ्लो कर रही है, तो ये क्या कर रही है, यहाँ पे जो रॉक का लेयर है उसको क्या कर रही है, हमेशा एक फ्रिक्शन दे रही है। फ्रिक्शन मतलब समझ रहे हो, एक उसको साथ ही साथ में घिसते हुए जाती है। तो जो वो उसको घिसते हुए जा रही है, तो सम पार्ट ऑफ दिस रॉक्स गेट क्या, वो बारिश और पानी के साथ क्या हो रहा है, बहता चला जाएगा। तो एक टाइम क्या आएगा ना कि रॉक जो इतना बड़ा था वो छोटा होके इतना रह जाएगा, और बारिश, ये पानी अपना तो फ्लो कर ही रहा है। ये अब ये जो साइज है, ये इतने बड़े से इतना बड़ा कैसे हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेनुअल डिसइंटीग्रेशन। धीरे 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 बहुत समय तक पानी जब उस पत्थर से लड़ते हुए जाता रहता है, तो वो पत्थर उसको क्या कर देता है, धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट कर, पानी उसको क्या कर रहा है, धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट करता है, छोटे छोटे फॉर्म्स में लेके जाता है, एंड दैट इज व्हाट एक्चुअली गेट्स सेटल डाउन एज अ सिल्ट इन वाटर। जब हम रिवर की बात करते हैं तो रिवर में बोलते हैं ना, हमारा सिल्ट इकट्ठा होते जा रहा है रिवर बेड में। तो रिवर बेड में सिल्ट जो इकट्ठा होता है, उसमें कहीं ना कहीं ये भी एक मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इन्हें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हम अभी टाइप ऑफ सॉइल्स पढ़ेंगे ना, तब उसमें आपको समझ में आएगा कि ये जो फॉर्मेशन है सॉइल्स का, ये फॉर्मेशन ही डिसाइड कर रहा है कि हमारे पास किस टाइप के सॉइल्स आ रहे हैं, और उनकी अपनी अपनी क्या प्रॉपर्टी है, वो इनके फॉर्मेशन पे ही डिपेंड करेगी, क्योंकि पेरेंट तो यही है, पेरेंट तो यही है ना, रॉक ही तो पेरेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट आ जाता है हमारा फ्रॉस्ट सेथरिंग। फ्रॉस्ट सेथरिंग इज एक्चुअली कुछ नहीं होता है, क्या है कि कहीं ना थोड़े थोड़े ओपनिंग्स होते हैं रॉक्स में। तो उस टाइम में क्या होता है ना, बारिश की वजह से या किसी ड्यू टू एनी रीजन, यहाँ पे कुछ वाटर्स जो रहेंगे वो क्या करेंगे, एज अ स्टोर्ड हो जाते हैं। अब अगर वहां पे मौसम ऐसा है ना कि फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे टेम्परेचर चला जाता है, तो उसमें क्या होगा, वो जो पानी रहता है वो क्या हो जाता है, एज अ आइस, बर्फ जम जाता है। अब ये बर्फ क्या करता है ना, इस फ्राइड वाले रॉक्स पे प्रेशर क्रिएट करता है, और ये धीरे धीरे जो ओपनिंग है, ये बढ़ के क्या हो जाती है, क्रैक कर जाती है, तो अलग अलग पार्ट। इसके वजह से अब ये देखो, ये जो पार्ट टूटा, ये फर्दर और ऐसे ही टूटेगा, और ये फर्दर टूटते 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 क्या हो जाते हैं, सॉइल्स के फॉर्म में convert। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है सारी चीजें। और अगर आपको ये चीजें क्लियर नहीं होती, तो जब भी आप इस वीडियो को देखते हो, तो सो ट्राई टू कमेंट इन दिस वीडियो कि आपको कौन से पार्ट में चीजें समझ में नहीं आई हैं। तो I will try to reply on those comments, so that you get a clear concept about how the soil are formation is there। और बाकी अगर बहुत लोगों के कुछ पर्टिकुलर चीजों पे डाउट होगा, तो मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे ही एक वीडियो लेके आ जाऊँ। ठीक है, अब देखो केमिकल वेदरिंग में भी मैंने आपको बताया था हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड सोल्यूशन वेदरिंग।
ये 4 तरीके की चीजें होती हैं जो कि आपके केमिकल वेदरिंग में आ जाती हैं। अब देखिए कार्बोनेशन कुछ नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे प्रेजेंट है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जब हमारा एनवायरनमेंट में प्रेजेंट वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करते हैं, दे फॉर्म कार्बोनिक एसिड, दे फॉर्म कार्बोनिक एसिड, एंड दिस पर्टिकुलर कार्बोनिक एसिड गेट्स रिएक्ट विद सॉल्ट, सॉरी रॉक। अब रॉक में जो भी मिनरल होगा, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, आयरन हो गया, ये जितने भी मिनरल्स आपके प्रेजेंट हैं, ये क्या करेंगे, इस कार्बोनिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, सॉल्ट ऑफ मेटल, सॉल्ट ऑफ मेटल या सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड, है ना। जब भी कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना लेता है, सॉल्ट बना लेता है। ये केमिस्ट्री में पढ़े होगे आप 10th क्लास तक, ठीक है। तो ये जब सॉल्ट बनाएगा केमिकल कार्बोनिक एसिड का, और ये क्या हो जाएगा, एक पाउडर फॉर्म में या कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। अब पर्टिकुलर एक बड़ा रॉक क्या किया, एक रॉक था जिसमें खूब सारे मिनरल थे हमारे, कार्बोनिक एसिड आया, इससे रिएक्ट किया और एक अपना अलग पार्ट बना। तो ये सारा चीज जब जब होते रहते हैं ना, इसी तरह ऑक्सीडेशन भी होगा। ऑक्सीडेशन क्या, जो भी हमारे मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडेशन बना लेंगे। रिडक्शन क्या, अब मान लो हमारा ये जो रॉक है, कई सारे इसमें एलॉयज भी होंगे, एलॉयज के फॉर्म में होंगे। एलॉयज किस फॉर्म में होंगे, या तो ऑक्साइड के फॉर्म में होंगे, या तो आपका हाइड्रोजन के फॉर्म, सल्फाइड के फॉर्म में होंगे, किसी ना किसी अलग अलग तरीके के फॉर्म में होंगे, जो कि फर्दर क्या करेंगे, ये अपने में से ऑक्सीजन अगर रिड्यूस कर दे मेटल, तो क्या बन जाएगा, उसका रिडक्शन हो जाता है। जब भी ऑक्सीजन किसी भी ऑक्साइड से रिड्यूस हो तो उसे हम क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। अब वो जो रिडक्शन हुआ उसके वजह से भी क्या हो रहा है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक हो रहा है। तो ये सारी चीजें मिलके क्या करती हैं, डिसइंटीग्रेट कर रही हैं रॉक्स, और वही रॉक फर्दर डिसइंटीग्रेट हो जाता है ड्यू टू विंड या ड्यू टू वाटर या किसी ना किसी रीजन की वजह से वो फर्दर डिसइंटीग्रेट होते होते क्या बन जाते हैं। तो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि व्हाट आर द मेथड्स या व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केमिकल वेदरिंग, लिटिल बिट नॉलेज अबाउट ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस एंड रिडक्शन एंड सॉल्यूशन वेदरिंग इज इंपॉर्टेंट, बट नॉट इन डिटेल। हैव अ क्लियर कंसेप्ट, एक माइंड में इमेज होनी चाहिए कि हाँ हाइड्रोलिसिस क्या हो रहा है, क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, और सॉल्यूशन वेदरिंग क्या होता है। सॉल्यूशन वेदरिंग कुछ नहीं, ये जो सॉल्ट्स हैं यही जब पानी में मिलके एक सोल्यूशन बना लेते हैं तो वही क्या हो जाता है, सॉल्यूशन वेदरिंग। ये बात समझ में आई। अब सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि जो ये सॉल्ट बन रहा है वो पानी में घुल गया है। अब अगर वो पानी में घुल गया है तो फिर तो वो उधर रहेगा नहीं, रॉक में, वो तो बह के आगे जाएगा। तो जब वो बह के आगे जाता है, कहीं पे सेडिमेंटेशन उसका हो जाता है, या कहीं पे वो स्टे कर जाता है, वहां से पानी जब सूख जाता है वो, तो बचा हुआ पार्ट क्या हो जाता है, बस सॉल्ट। ये बात क्लियर हुई। अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक अपना है आज के वीडियो का, बायोलॉजिकल वेदरिंग। देखिए बायोलॉजिकल वेदरिंग में मैंने आपको पहले ही समझाया था, वही सारे पार्ट हैं। अब ये देखिए, ये प्लांट का रूट है। ये प्लांट का रूट जब पेनिट्रेट करता है सॉइल्स के लेयर में, तो वो क्या करता है, जो अंदर पेरेंट रॉक होते हैं कई बार उनको भी तोड़ देता है। अब ये मान लो आपका माउंटेन में कोई प्लांट है, ये माउंटेन में अगर कोई प्लांट है, तो उसका जो रूट्स होगा वो क्या करेगा, वो पहाड़ के रॉक्स को क्या करेगा, ये रूट्स तोड़ेगा उसको। तो एक क्या हो जाएगी आपकी, ओपनिंग आ जाएगी रॉक्स में उस रूट्स के वजह से, और ये ओपनिंग ही फर्दर क्या करेगी, इस रॉक्स को डिसइंटीग्रेट। सिमिलर लाइक एनिमल, अब ये देखिए छोटा सा होल बना के इसमें जी रहा है। अब ये जब बार बार आ रहा है जा रहा है तो इसके वजह से क्या हो रहा है, चीजें को तोड़ रहा है, डिसइंटीग्रेट कर रहा है। तो टोटल सारी चीजें इसमें क्या है ना, डिसइंटीग्रेशन ही। तो बायोलॉजिकल वेदरिंग में जो 3 सोर्सेज होते हैं वो क्या हो जाते हैं हमारे, प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन। अब ह्यूमन कैसे इसको इफेक्ट कर रहे हैं, अब देखो हम क्या करते हैं, माइनिंग करते हैं, मिनरल्स निकालने के लिए, कोयला निकालने के लिए माइनिंग कर रहे हैं। अब माइनिंग किसका कर रहे हो तुम, या तो जब सॉइल्स के लेयर को तोड़ते हो, नहीं तो याद करो छत्तीसगढ़ और इन सब की जगह डायनामाइट लगा के उड़ा देते हैं सारी चीजों को, और फिर क्या होता है, वो वहां पे अच्छे बच्चे कुछ जो भी रॉक्स होते हैं उनको भी हम क्या कर रहे हैं, डिसइंटीग्रेट। अब वो फर्दर तुम्हारी फिजिकल वेदरिंग से, केमिकल वेदरिंग से वो क्या हो जाएंगे, फर्दर सॉइल्स में कन्वर्ट। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये तीनों के तीनों अलग अलग चीजें हैं, मीन्स दे ऑल थ्री आर कनेक्टेड और इंटरलिंक्ड टू ईच अदर। एक
बायोलॉजिकल वेदरिंग से कुछ हुआ तो उसमें कभी कुछ केमिकल वेदरिंग से हो जाएगा, फिर उसी पे पर्टिकुलर चीज पे तुम्हारा फिजिकल वेदरिंग भी होगा। तो तीनों के इंटीग्रेशन या तीनों के कॉम्बिनेशन के इफेक्ट से क्या होता है, एक रॉक जो होता है तुम्हारा सॉइल के फॉर्म में कन्वर्ट। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त एंड करेंगे। ये जो वीडियो थी हमारी सॉइल के बेसिक मीनिंग और कुछ फैक्ट्स और उनके फॉर्मेशन के ऊपर। अब जो नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूं सॉइल के ऊपर, उसमें हम बात करेंगे पर्टिकुलरली कि ये जो सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है, अब ये सॉइल की प्रोफाइल क्या होती है। तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैं बता देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड का। एक जो सॉइल होता है ना हमारे 4-5 लेयर के बने होते हैं, जो कि फर्दर अंदर सबसे जो नीचे वाला पार्ट होगा वो कहीं ना कहीं रॉक होगा, और इस यही एज अ पेरेंट मटेरियल काम करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ योर रॉक, सॉरी सॉइल। ठीक है ना, तो ये चीजें हमें ध्यान देनी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे सॉइल के प्रोफाइल के बारे में पढ़ने के लिए, और उसके वजह से जो भी उस और फिजिकल और जो भी हमारा सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है फिजिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि उसके वजह से आप ये डिसाइड कर पाओगे कि जो हमारा सॉइल है वो क्लेई है, सैंडी लोम है, सैंडी है, क्या है, किस तरीके का है, वो सारी चीजें आपको तभी समझ। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा जरूर इसको इस पे कमेंट करिएगा। आपको किसी टॉपिक में इसमें अगर डाउट होता है तो डू कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन, and I will try to rectify those things in comment, or I will try to make a new video on this. Okay, so thank you guys.